lovely NEET aspirants. I am back with another video, and the topic of today's video is oogenesis. A little bit tough topic for you? No problem. From today, you'll be able to solve all the questions related to it and all your concepts will get cleared. आज हम लोग इस वीडियो में oogenesis के बारे में बात करेंगे, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. सो बिफोर वी बिगिन वी शुड नो व्हाट गेमीटोजेनेसिस इज. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहला इवेंट क्या होता है? गेमीटोजेनेसिस. गेमीटो मीन्स it has come from the word gamete. Genesis means synthesis or production. So gametogenesis का मतलब क्या हुआ? Formation of gametes. अगर male gamete है which is sperm, तो it is called spermatogenesis. And if it is a female gamete which is ovum, it is called oogenesis. So gametogenesis is formation of gametes. Process of formation of gametes. Okay, in males it is called spermatogenesis, which is sperm formation, and in female it is called oogenesis, which is formation of ovum or egg formation. क्लियर हुआ? तो आज हम बात करेंगे इन डिटेल अबाउट oogenesis. चलिए आगे चलते हैं oogenesis पर. oogenesis समझने के लिए आपको मैं कुछ चीजें पहले से बता देती हूँ. देखो, oogenesis जो प्रोसेस है फीमेल में, वो प्यूबर्टी पर शुरू नहीं होता जैसे कि spermatogenesis. Unlike spermatogenesis, oogenesis start in the fetal stage itself, in the embryonic stage itself, and then on the onset of puberty it continues. So the major difference, the foremost difference, so the major difference or the foremost difference between oogenesis and spermatogenesis is that oogenesis start at the embryonic stage, while the girl, the fetus, she is still inside her mother's womb or the uterus. Clear? So आज हम in detail पढ़ेंगे oogenesis को. oogenesis कहाँ पर होगा? In the ovaries. Ovaries of the female, right? And when does it start? It will start while she is still inside the mother's womb. So it will start when she is still inside the mother's womb and in the ovaries of the fetus. But mother की womb में क्योंकि ये process हो रहा है, यानी जब fetus mother की womb में है, इसलिए oogenesis का जो पूरा प्रोसेस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. जो बिफोर बर्थ वाला पार्ट है उसे हम इंट्रा यूटेराइन पार्ट भी कह सकते हैं या प्रोसेस भी कह सकते हैं. इंट्रा यूटेराइन क्यों बोला है यहाँ पे? इट डज नॉट रेफर टू द यूटरस ऑफ द फीमेल फीटस बट द यूटरस ऑफ द मदर, क्योंकि जो फीमेल फीटस है वो मदर के यूटरस में है, और जब वो मदर के यूटरस में है तब ये प्रोसेस उस फीमेल फीटस की ओवरी में शुरू हो रहा है. आया समझ में कि हम क्यों उसे इंट्रा यूटेराइन, इंट्रा मीन्स विद इन, यूटेराइन मीन्स यूटरस, एंड इट टेक्स प्लेस व्हेन शी इज स्टिल इनसाइड द मदर्स वूम. ओवरीज जो है, द फीमेल्स हैव गॉट अ पेयर ऑफ ओवरीज within which oogenesis occur, and then there are fallopian tubes through which the ovum passes into the uterus. Then there is, see, the uterus जहाँ पर implantation भी होता है fertilization होने पर, और अगर fertilization नहीं हुआ तो it comes out unfertilized along with the wall of the uterus, cervix, and then we have the vagina. तो आपको एक आइडिया हो गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है. अब हम चलते हैं oogenesis, whose site is ovaries. Okay?
oogenesis का जल्दी से बताइए, साइट क्या है? ओवरी, है ना? और oogenesis क्या है? ओ refers to ovum, which is a mature female gamete, and genesis refer to production, है ना? So oogenesis क्या हो गया? जल्दी लिखो, process of production of mature female gamete, that is ovum. Process of production of mature female gamete, that is ovum, is called oogenesis. Site or location is inside the ovaries of a female. And what are ovaries? Ovaries are प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? जिनमें गेमीट का प्रोडक्शन होता है और सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन होता है. सो ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और गोनैड. ऑर्गन, राइट? ऑनसेट कब होता है oogenesis का? कब होता है जल्दी बताओ. ऑनसेट एम्ब्रियोनिक स्टेज पर. वेरी गुड. सो ये तो आपको अब क्लियर हो गया है. ऑनसेट स्टार्ट्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज. उसके बाद ये हॉल्ट हो जाता है और फिर कंटिन्यू होता है प्यूबर्टी पर, एंड देन continues at puberty. ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा, देखना ही नीट में आता है कि oogenesis कब शुरू होता है, और या फिर मेजर डिफरेंस. वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, बट द मेजर डिफरेंस और द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज oogenesis always start at the embryonic stage of the female fetus and then it continues at the puberty, while in case of male spermatogenesis starts only at puberty. ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? लिखा सबने? वेरी गुड. अब हम चलते हैं आगे. हमने ये देख लिया है कि ओवरीज में शुरू होगा. देखो, ओवरीज में जब oogenesis होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ओवम फ्रॉम द फीमेल और द गेमीट मदर सेल, यही होता है. गेमीट मदर सेल से बनता है ओवम या गेमीट. जब oogenesis होता है तो साथ ही साथ फॉलिक्यूलर जेनेसिस भी होता है, यानी फॉलिकल का फॉर्मेशन. द oocyte, द ovum is formed inside the follicle, so they take place simultaneously. कैसे? हम देखेंगे. ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं ओवरी के बारे में बताती हूँ. ये जो है एक फीमेल ओवरी का क्रॉस सेक्शन है. फीमेल ओवरी की सबसे आउटरमोस्ट लेयर क्या होगी? द एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर. ये देख रहे हो, द क्यूबॉइडल सेल्स कॉल्ड germinal epithelium, the outermost layer. These are cuboidal cells और ये जो है germinal epithelium layer. Epithelium क्या होता है? The outermost covering. Epithelium is always the outermost covering. Ovary के outermost covering भी epithelium, but this is germinal epithelium. Germinal का मतलब which give rise to the germ cells, that is the gamete mother cell, है ना? तो ये देखो germinal epithelium. तो क्या होता है जब oogenesis start होता है? Some of these cells of this germinal epithelium, they basically start acting
as gamete mother cell or oogonia. Gamete mother cell और oogonia. जो आपने अभी माइंड मैप बनाया है यहां पर इसमें लिखो ovum is formed from ovum, which is your gamete. Okay, and gamete is always haploid, having only one set of chromosome of each type. Why it is haploid? क्योंकि प्लॉइडी खराब नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज एबनॉर्मैलिटी या डिजीज हो सकता है, एंड द गेमीट हैज टू फ्यूज टुगेदर, द टू गेमीट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फीमेल एंड मेल. तो जब वो फ्यूज होंगे तो नंबर वापस से रीस्टोर हो जाएगा, इसलिए गेमीट जो है वो हैप्लॉइड होता है. ओवम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, जल्दी बताओ, गेमीट मदर सेल, and the gamete mother cell is also known as here oogonia. Oogonia, which is diploid. So the gamete mother cell is oogonia, which is diploid, having two sets of chromosome, while ovum is haploid, having one set. So 2n से n कैसे बनेगा? By reductional division or by equational division? It will be by reductional division. दो सेट से आपको वन सेट में आना है, तो कौन सी डिविजन होगी? Reductional division, which is called meiosis. And that is why meiosis takes place in specialized organs called gonads, चाहे वो मेल्स में टेस्टिस हो या फीमेल्स में ओवरीज हो. सो meiosis से बनता है क्या आपका ओवम फ्रॉम दी oogonia. ठीक है, आया समझ में? रिडक्शनल डिविजन. नाउ टू स्टार्ट विद oogenesis, how does gamete mother cell or oogonia forms? oogenesis मैंने आपको अभी बताया कि कैसे बनता है oogonia. जर्मिनल एपिथेलियम के कुछ सेल they start acting as oogonia mother cell or oogonia or the germ cell, primary germ cell. So few cells of germinal epithelium of किसके? germinal epithelium, ovary के, obviously of ovary start acting as oogonia mother cell or primary germ cell or gamete mother cell. Start acting का मतलब क्या है? That they get differentiated from the other cells of the germinal epithelium and then they become or they act as oogonia mother cell. ये सब कौन सी स्टेज में हो रहा है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में. एम्ब्रियोनिक स्टेज. किस स्टेज में हो रहा है ये? एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या हो रहा है कि oogonia का फॉर्मेशन हो रहा है. कहाँ से? जर्मिनल एपिथेलियम लेयर से. ठीक है, और वो oogonia मदर सेल कहाँ पर जाएंगे? They will come in the stroma region. जो भी ओवरी के अंदर जो ये स्पेस होती है इसको स्ट्रोमा कहते हैं, जिसकी पेरिफेरल रीजन कहलाती है कॉर्टेक्स एंड मिडिल वाली कहलाती है मेड्यूला. मेड्यूला में ब्लड वेसल्स होता है, हाईली वैस्कुलर. कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स का मैच्योरेशन हो रहा होता है. सो इट कम्स इन दी कॉर्टिकल रीजन. ठीक है, oogonia मदर
सेल, और साथ साथ आप प्लॉइडी लिखते चले जाना। प्लॉइडी डिप्लॉइड है, 2n है, प्लॉइडीज ही आपको क्लियर करनी है, उसी पर आपके क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ दीज ऊगोनिया मदर सेल, क्योंकि बहुत सारा एपिथेलियम ऊगोनिया मदर सेल नहीं बन गया है, कुछ ही बना है, तो क्या होगा, दिस ऊगोनिया मदर सेल और ऊगोनिया या फिर गेमीट मदर सेल, ये शो करेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन मतलब दैट दे विल इंक्रीज इन नंबर, और मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी डिवीजन होती है, जल्दी कमेंट डाउन करो, विच डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस? Mitosis, very good. So by mitosis they will increase in number. Okay, so oogonia undergo mitosis. एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं oogenesis प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट which is multiplication phase. Multiplication phase यानी to increase in number. कौन नंबर में इंक्रीज करने वाला है? Yes, very good. So oogonia increase in number by undergoing repeated mitosis. By undergoing repeated mitosis. ठीक है, माइटोसिस याद रखना। सो ये इक्वेशनल डिवीजन है। सो मेनी oogonia विल बी फॉर्म्ड इनसाइड द ओवरी। वेरी गुड, आया यहाँ तक समझ में? एम्ब्रियोनिक स्टेज में oogonia बनेंगे फ्रॉम सम ऑफ द सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम, and then they will undergo multiplication phase to increase in number, and उसके बाद क्या होगा? The next stage will be growth phase, है ना? तो क्या बन गए? oogonia increase in number. Around millions of oogonia और एग मदर सेल, कुछ भी बोल सकते हो, फॉर्म inside each fetal ovary. Inside each fetal ovary. तो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से अराउंड मिलियंस ऑफ oogonia या एग मदर सेल फॉर्म होते हैं हर एक फीटस की, फीमेल फीटस की ओवरी में। तो क्या हुआ? एम्ब्रियोनिक स्टेज में oogonia का फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम से जो oogonia बने, दे विल फर्स्ट अंडरगो मल्टीप्लिकेशन फेज टू इंक्रीज इन नंबर, सो बाय रिपीटेड माइटोसिस, ताकि हर ओवरी में मिलियंस ऑफ oogonia का फॉर्मेशन हो सके। मिलियंस ऑफ oogonia, and they all will come to the cortical region of the ovary. ठीक है, अब इसके बाद कौन सा फेज आएगा? इसके बाद आएगा ग्रोथ फेज। कौन सा फेज? ग्रोथ फेज। सो द सेकेंड फेज, ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रहा है, याद रखना। सेकेंड फेज कौन सा है? ग्रोथ फेज। इस फेज में क्या होगा? ग्रोथ होगा। किसका ग्रोथ होगा? oogonia मदर सेल का, जो अभी बने हैं। सो oogonia मदर सेल विल स्टार्ट ग्रोइंग, एंड क्या होगा कि धीरे धीरे ये ग्रो होंगे और कन्वर्ट होंगे किस में? प्राइमरी oocyte में।
अब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि oocyte का फॉर्मेशन कोइंसाइड्स विद द फॉलिकुलर जेनेसिस, यानी फॉलिकल का फॉर्मेशन सभी oocyte फॉलिकल्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ग्रोथ फेज में, सबसे पहले फॉर्मेशन होगा प्राइमरी फॉलिकल का, जिसके अंदर होगा प्राइमरी oocyte, ठीक है। क्या हुआ, जो oogonia मदर सेल बने, वो oogonia मदर सेल नाउ स्लोली एक एक करके सारे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे किसमें, या ग्रो हो जाएंगे किसमें, प्राइमरी oocyte पे। ग्रोथ का मतलब है दैट दिस oogonia mother cell will start increasing in their size, cytoplasm का अमाउंट बढ़ेगा, and then they will start undergo meiosis, मियोसिस में एंटर करना शुरू करेंगे। जैसे ही एक oogonia मियोसिस में एंटर करता है तो वो मैच्योरेशन फेज की स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो ग्रोथ फेज में हम अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल विद प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। तो इसके नीचे सब हेडिंग डालिए, formation of primary follicle, formation of primary follicle. You know what follicle means? Follicle means a पाउच और पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर, तो ये जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है ये कुछ सेल्स का बना होता है कॉल्ड ग्रैन्युलोसा सेल, जिसके अंदर क्या होगा, आपका oocyte मैच्योर हो रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। तो देखो बच्चों, जैसे ही oogonia मदर सेल फॉर्म हुआ और वो रिलीज हुआ ओवेरियन कॉर्टेक्स में, तो oogonia मदर सेल विल अंडरगो ग्रोथ, यानी इट विल इंक्रीज इन साइज। साइज में जब वो बढ़ेगा उसके बाद वो एंटर करेगा किसमें, मियोसिस में, और जब वो मियोसिस में एंटर कर रहा होगा साथ ही साथ फॉलिकल भी बनेगा, यानी इट विल गेट सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ granulosa cell, a single layer of granulosa cells. They are rich in granules, so they are called granulosa cell. And this primary oocyte plus granulosa cell is primary follicle. तो सबसे पहले क्या हुआ कि oogonia mother cell या egg mother cell will grow in size. oogonia grows in size and then it will enter meiosis. मियोसिस आपको पता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 मिलके मियोसिस होता है। तो ये मियोसिस में एंटर तो हुआ, बट क्या हुआ, दे ऑल गेट अरेस्टेड एट meiosis 1, प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1। और प्रोफेज 1 में भी कौन सी स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज पर वो अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यानी अभी भी ये डिप्लॉयड ही है, क्योंकि देखो मेटाफेज एनाफेज तो हुआ ही नहीं। एनाफेज में क्रोमोसोम हाफ होते हैं जब स्पिंडल खींचता है दो पोल की तरफ, तो अभी तक ये प्रोफेज स्टेज में ही है, इसलिए ये क्या है, अभी भी डिप्लॉयड है। सो इट एंटर meiosis 1 but get arrested at diplotin stage of prophase 1 of
मियोसिस 1। इसको मैंने अलग से ऐसे पेन से इसलिए लिखा है टू शो यू द इम्पोर्टेंस कि ये इंफॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है और आपसे पूछी जा सकती है। एंड सच oogonia मदर सेल जो मियोसिस 1 में एंटर तो हुए बट अरेस्ट हो गए, इनको अब हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड एज, वेरी गुड, प्राइमरी। इसके बाद प्राइमरी को हम ऐसे 1 डिग्री करते जाएंगे, ठीक है? दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। जल्दी से मुझे आप इसकी कमेंट डाउन करो, प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? जल्दी जल्दी। वेरी गुड, डिप्लॉइड, क्योंकि अभी भी मियोसिस 1 कंप्लीट ही नहीं हुआ, इनफैक्ट प्रोफेज 1 ही कंप्लीट नहीं हुआ। सो दिस प्राइमरी oocyte इज स्टिल डिप्लॉइड, इट इज स्टिल डिप्लॉइड। आया समझ में? क्या हुआ? oogonia साइज में बढ़ा, फिर उसने मियोसिस 1 में एंटर किया, पर मियोसिस 1 की डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट हो गया, और अब हम इन अरेस्टेड सेल्स को प्राइमरी oocyte कहेंगे जो कि डिप्लॉइड है। पर इसके साथ साथ क्या हो रहा था? फॉलिकल का फॉर्मेशन भी हो रहा था। सो नेक्स्ट उसमें लिखो, द प्राइमरी oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cells. Very good, granulosa cells, and now they are called as primary follicle and are called as primary follicle। आया समझ में? आया? कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या है? प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। क्लियर हुआ? इसका एक माइंड मैप आप ऐसे बना लो ताकि एंड में रिवीजन में आपको आसानी होगी। क्या लिखोगे माइंड मैप में? फटाफट अगर आपको प्राइमरी फॉलिकल एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? प्राइमरी फॉलिकल इज इक्वल टू प्राइमरी oocyte, और इसमें आप इसकी प्लॉइडी भी लिखता, प्लस ग्रैन्युलोसा सेल लेयर, प्लस ग्रैन्युलोसा सेल लेयर। ये लो, आपका माइंड मैप भी तैयार हो गया। क्लियर हुआ? प्राइमरी फॉलिकल इज प्राइमरी oocyte which are arrested at metaphase stage of diplotin क्लियर हुआ? सो प्राइमरी फॉलिकल क्या है? प्राइमरी oocyte which are arrested at diplotin stage of prophase 1 of meiosis 1 and a layer of granulosa cell। सो देखो बेटा, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स बने और इसमें जो oocyte बना प्राइमरी oocyte मियोसिस से, वहां पर एक्चुअली वो मियोसिस का स्टार्ट ही मैच्योरेशन का स्टार्ट है। Millions of primary follicles are formed in each ovary of the female at the embryonic stage। उसके बाद बर्थ के बाद कोई भी oogonia मदर सेल ऐड नहीं होंगे, जितना बनना था बन गया है। अब बर्थ के बाद मैच्योरिटी आने पर सिर्फ और सिर्फ एवरी मंथ मैच्योरेशन होगा। किसका? प्राइमरी oocyte का इन टूवर्ड्स द ओवम। कैसे आगे बताती हूँ। तो मिलियंस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट एक आपको टर्म सिखाती हूँ विच इज कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। पहले तो लिखो, मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स are formed
inside each ovary of female fetus, है ना। फीमेल फीटस की ओवरी में मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं with which she is born, है ना, with which she is born। अब क्या होगा, इस अरेस्टेड स्टेज में जो फॉलिकल्स है यहाँ से बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक ये अरेस्टेड रहेंगे और अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज है, दैट इज द डीजेनरेशन। क्या होता है, आपने लिखा आपने भी क्या लिखा मेरे साथ कि हर ओवरी में मिलियंस ऑफ oogonia प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, बट जब वो मेच्योरिटी पर पहुंचते हैं, बाय द टाइम द फीमेल रीचेस द मेच्योरिटी फ्रॉम बर्थ, फ्रॉम द मिलियंस ऑफ primary follicle only 60 to 80 के primary follicles are left in each ovary। सिर्फ 60,000 to 80,000 की रेंज में हर ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल रह जाते हैं बर्थ से प्यूबर्टी तक। तो बाकियों का क्या हो गया, बाकियों का डीजेनरेशन हो गया। और ये जो प्रोसेस ऑफ डीजेनरेशन है ना, इसी को ही हम क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। एट्रेसिया मीन्स डेथ, फॉलिकल्स की डेथ हो गई। सो व्हाट इज फॉलिक्यूलर एट्रेसिया? डीजेनरेशन ऑफ प्राइमरी, वेरी गुड, अब तो आप खुद ही लिख लेंगे, फॉलिकल्स फ्रॉम बर्थ टू puberty, leaving only how many in each ovary? लिखो लिखो लिखो, very good, leaving only 60K to 80K primary follicles in each ovary, in each ओवरी। अंडरलाइन करना 80 to 60 के, और अंडरलाइन करो ईच ओवरी को। हर ओवरी में 60 to 80 के ही रह जाते हैं, बाकी की डेथ हो जाती है। अगर क्वेश्चन आए आपको कि हाउ मेनी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑन द बाय द टाइम शी रीचेस मैच्योरिटी, मुझे पता था यही मिस्टेक करोगे। मैंने ये नहीं बोला हर एक ओवरी में, मैंने बोला पूरे फीमेल में कितने हैं। तो हर एक ओवरी का ऐड करोगे तो 60 इधर, 60 लेफ्ट ओवरी में, 60 राइट ओवरी में, कितना हो गया 1,20,000। और 60 to 80 रेंज है तो 1,20,000 से 1,60,000। और अगर ईच ओवरी में पूछा है तो 60 to 80K। आ गया बेटा यहाँ तक समझ में? क्लियर है? सो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक कुछ भी नहीं होगा, फीमेल जो है उसकी ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं बैठे रहेंगे और उसमें से काफ़ी सारे डीजेनरेट हो जाएंगे, जिस प्रोसेस को हम फॉलिक्यूलर एट्रेसिया कहते हैं। अब क्या होगा देखो, मैं आपको दिखा दूं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल जिसमें अभी गेमीट मदर सेल ही है, फिर ये प्राइमरी फॉलिकल में बदला, विच मीन्स द गेमीट मदर सेल इज एंटरिंग मियोसिस, बट वो मियोसिस 1 की डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो गए और सराउंड हो गए ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर से, एंड वी कॉल इट प्राइमरी फॉलिकल। तो ये हमारा हुआ एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो बर्थ से प्यूबर्टी तक जाएगा। अब प्यूबर्टी में क्या होगा उसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। So that's all for today. I hope you really liked the video. We'll continue this session in the next part, so stay tuned. Do subscribe to our channel if you are new to our channel, and hit the notification bell to get the update of the new video. All the best. Bye.